जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રઢ મને લાગી, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં નાહવું છે, ભક્તિ રસમાં નાહવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું અકારું, જીવન મારું બન્યું અકારું, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
Okay. Monica Didi, number 1. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબાય કે દુબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. દિવ્યા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મોનિકા દીદી. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલી તો મને મૃદુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. દીદી. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. દીદી. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. દિવ્યા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મોનિકા દીદી. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. અક્ષય, ત્રિમંત્ર બોલાવો પછી દીપકાને ફોન કરજે ને. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही हो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऋषि। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। श्रेया सेपरेशन प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. હેલ્થ. હેલ્થ નું આવડે ખબર છે? हाँ, હા બોલો. जय सच्चिदानंद। સ્વસ્થ શરીર આપણને શારીરિક, માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, બૌદ્ધિક, ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. શ્રેયા સ્ટડી. અભ્યાસમાં સખત મહેનત, પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે. મારા લક્ષ્ય, સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. જય શ્રી ખુશી આવડે છે? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા જ સત્સાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે, મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા 3 ધ્યેયો સિદ્ધ કરાવશે, મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, મારો વ્યવહાર સુધારશે, દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે અને તેમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો આજે તો 3 જણા છે અને હસમુખ કાકા છે. વેરી ગુડ.
બરાબર ધમાધમ કરો આજે હસમુખ કાકા સાથે. ઓકે શ્રેયા, આપણે ત્રણ ગોલોમાં માઇન્ડમાં પોઝિટિવ નેગેટિવ. हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरे मेरा दादा ज्ञान में नेगेटिव ये है कि मैंने आज कलम 7 ब्रेक कर ली थी, और पॉजिटिव ये है कि मैंने सुबह जल्दी उठकर सत्साधन किए थे। स्टडीज में मेरा नेगेटिव ये है कि मैं आज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और स्कूल के वक्त, और मैंने आज मेरा एसएस का एक चैप्टर कंप्लीट किया। मेरा हेल्थ में पॉजिटिव ये है कि मैंने आज एक्सरसाइज किया था, और नेगेटिव ये है कि मैंने टेस्ट ऑब्जर्व नहीं किया। કે સુપરમેન किया था आज કરી થયું. हाँ, ओ क्या बात है, वेरी गुड. अरे 7th कलम में શું થયું હતું? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? मैंने टेस्ट ऑब्जर्व नहीं किया। क्यों ऐसे खा लिया? पापा के साथ बात कर रही थी। पापा की, मैं योर फेवरेट पापा के साथ. ओके ओके खुशी. हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा हेल्थ में पॉजिटिव ये था कि मैंने आज एक्सरसाइज की थी, और नेगेटिव ये था कि मैंने सुपर ब्रेन योगा नहीं किया था। और स्टडी में पॉजिटिव ये था कि कल मेरा ड्राइंग का पेपर है, तो मैंने आज ड्राइंग किया था, और नेगेटिव नहीं है। ड्राइंग में क्या किया करते आप? हाँ, वो हमारे ड्राइंग में सब मंडाला आर्ट और सब आता है। क्या मंडाला आर्ट क्या है? विधि तारे बोलवान नहीं है. મંડાલા આર્ટ કોણ है? તેનું હોય માણસ હોય, પક્ષીઓનું હોય, ટ્રીઝ નું હોય. એમાં શું ડ્રો કરો છો? નેચર. નેચર ડ્રો કરીને પછી અંદર ડિઝાઇન્સ ને એવું બધું કરવાનું એ બી આવે છે, અને પછી સ્ક્વેર શેપ કરીને અંદર ડિઝાઇન કરવાની એવું બી આવે છે, પણ સરે જે ડિઝાઇન કરાઈ હોય એ નહીં કરવાની, એનાથી અલગ કરવાનું. ઓકે, તો વિધિ દીદીનો પિક્ચર ક્યારે બનાવીને મોકલાવશો અમને? એટલું ડ્રોઈંગ નથી આવડતું. અચ્છા, એવું નથી કરાવતા. ઓકે ઓકે ઓકે. હવે જાણ ખાતર હસમુખ કાકા આપણને કે ખબર ના પડે છોકરાઓ શું કરે છે એટલે પૂછી લઈએ ને આપણે. ઓકે વિધિ દીદી. ઓ એક મિનિટ, તને તમારી आपको बैक प्रॉब्लम था तो एक्सरसाइज कैसे किया आपने? हाँ, वो मैंने साइकिलिंग की थी। साइकिलिंग में बैक यूज नहीं होते? हाँ, साइकिलिंग में बैक यूज नहीं होते? हाँ, वो होता है, पर मैंने आज कर लिया था। आपने कर लिया. ओके विधि जी. हाँ, जय सच्चिदानंद। आज हेल्थ में पॉजिटिव ये है कि मैंने सारे टेस्ट ऑब्जर्व किए थे, और नेगेटिव ये है कि आज मेरा एक्सरसाइज छूट गया था, बिकॉज आज मुझे कॉलेज जाना था, तो थोड़ी देरी हो गई थी। और स्टडी में आज मेरा सारा पॉजिटिव था। मैंने मैथ्स में डिफरेंशिएट का चैप्टर किया था, और बीई में मैंने गेट्स किए थे, और दादा भगवान के ज्ञान में आज मेरे सारे सत्साधन टाइम से हुए, और आरती भी हुई थी। आज तो आई डोंट नो हसमुख का क्या बात करेगा, ये तो बहुत अच्छा रिपोर्ट है. हाँ, आज ये लोग बात करेंगे इतना अच्छा कैसे कर लिया उन्होंने, वो बताएंगे. बात करो आप. हाँ विधि दीदी, आज का आप जैसे सब सही तरह से हो गया बरोबर है, तो उसका क्या कारण है? हाँ, मतलब मैं कल रात को पूरी विधि मतलब बोल के सोई थी कि हे दादा भगवान, हे सिमंदर स्वामी, हे शासन रक्षक देव देवियों, कल मेरा पूरा जो मेरा गोल है वो सारा खत्म हो जाए। पर सिर्फ एक्सरसाइज नहीं हुई, पर सत्साधन पूरे हुए, आरती भी हुई, और टेस्ट भी ऑब्जर्व हुए, और स्टडी भी अच्छे से हुई। मतलब आपको अनुभव हुआ ना कि भाई हम अगर भगवान से प्रार्थना करके सौंप के सो जाते हैं, कुछ करते हैं,
तो हमको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, तो यही अनुभव हमको हर एक जगह पे अप्लाई करने का है, बरोबर हाँ, ना? जैसे आज आपने सब जगह, सब जो आज ग्रुप में है सबने कंप्लीट है, तो यही अनुभव हमको आगे पक्का रखने का है और ये अनुभव को आगे धीरे धीरे बढ़ाने का है। क्या करने का है? आज एक चीज हाँ, में अनुभव हुआ है, सिर्फ विधि में हुआ अनुभव कि ये धीरे धीरे करके ये जो आपने आधे घंटे के मतलब विधि के लिए आपने किया, तो वही पूरे का पूरा दिन के लिए अभी मानने का, धीरे धीरे करके और बढ़ाने का और हाँ, बढ़ाने का, ऐसा करके करके पूरा कर देने का है। समझ गए ना आप? मतलब हाँ, अपने जीवन में कुछ भी काम करने का होए तो वो भगवान से प्रार्थना करने का है, भगवान से अनुमति लेकर हमको करने का, बराबर उनको बताने का, भगवान मैं ये करने जा रहा हूँ, आप मुझे ऐसे शक्ति प्रदान कीजिए। तो वो अपने आप उनका प्रकाश देंगे। वो क्या देंगे? उनका प्रकाश। प्रकाश देंगे हमको। जहां जहां हम रुक जाते हैं वहां वो उनका ज्ञान प्रकाश हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। जैसे आपने रात को मगर उनको बताया होगा तो वो अपने ज्ञान प्रकाश देना शुरू कर देंगे। जैसे हाँ, आपने रात को बताया तुमको ये सुबह करने का, ये सुबह करने का, इतना इतना करने का है, हो जावे, तो ऐसा ही आप बता दोगे कि भगवान मेरे को अभी ये करने का है, 9 बजे बाद इन सब में या कॉलेज में जाने का है, तो आप मेरे साथ में रहना और मेरे को अच्छी तरह से ये सब निपट जाए, ऐसे आप सबको समझण देना। तो हाँ, वो भी आपको बता देंगे। अनुभव है ना आपका? हाँ, फिर शाम को जब चरण विधि करने का टाइम हुआ तो अंदर खड़ा हुआ कि नहीं करनी है आज, थोड़ा प्रोजेक्ट है वो खत्म कर देते हैं। पर फिर हाँ, वो शक्ति माँगी थी ना, इसलिए अंदर से आवाज़ आया कि नहीं, ये तो करने में 20-25 मिनट ही लगते हैं, उतना हाँ, फ़ोन कम देखेंगे, इससे अच्छा है चरण विधि कर लेते हैं। इस हम्म, ऐसे मैंने, और फिर जयेश दादा भी बताते हैं कि चरण विधि नहीं करते तब खाना नहीं खाने का, इसलिए फिर मैंने बोला आज तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, बराबर है। तो अपने जो नित्य क्रम की विधि है, एक बार अगर उनको अपने को उसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर धीरे धीरे ये टेस्ट धीरे धीरे कम होते जाएंगे। समझ में? तो आपने जो अनुभव किया है वो अनुभव अपने लक्ष्य में रखने का है। कभी कभी ऐसे पटरी पर से ट्रेन उतर जाती है तो वो अनुभव करके फिर वो वाला ज्ञान लगा के फिर से ट्रेन को पटरी पे चढ़ा देने की, ज्यादा टाइम नीचे नहीं रखने की, बराबर है? तुरंत ही हाँ। उसको वापस पटरी पर चढ़ा देने की है, बराबर है? आगे दूसरा कोई बताओ, उन्होंने क्या नक्की किया था? पूरा हो गया सब आपका? खुशी दीदी क्या बोलती है? एक मिनट, एक मिनट हसमुख काका। तो ये हाँ, विधि दीदी, हाँ, नाउ आपको एवरीडे नोट्स लिखने का है हाँ, कि आज आज कौन सा दिन है? टुडे इज वेन थर्सडे ना? हाँ, ओके, सो वेडनेसडे आपने ये पक्का किया था कि कल हाँ, क्या करना है, तो उसमें चेक मार्क करने का, राइट? तो हाँ, थर्सडे अच्छा हुआ अभी। सो एवरीडे देखो, हसमुख काका ने बोला ना कि कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करे कैसे कर सकता है? हाँ? निश्चय से। तो ये सामने बुक रखने का, नहीं तो हाँ, वॉल पे चिटका देने का आपका स्केड्यूल, तो मालूम पड़ेगा कि आप रेगुलरिटी से सिंसियरिटी में है कि नहीं हो, वो अभी पक्का हाँ, करने का। ठीक है हसमुख काका? हाँ, बरोबर है। अपने हमारे यात्रा में भी अभी हम लोग जाके आए तो उन्होंने काफी ऐसे महात्मा थे जो लोग रेगुलरली 4 बजे उठ के विधि करते हैं। वो लोग चाहे रात को कितने भी बजे सो जावे, लेकिन उन्होंने जो नक्की किया है कि हमको 4 बजे उठ के विधि करने का है, तो लोग उठ जाते हैं। ऐसा है, हमने भी देखा, ऐसा है, हमने लाइव देखा तो हमारे भी इतनी शक्ति आ गई, ऐसा है। लेकिन हमारा क्या था कि पहले भी चलो 6 बजे उठे तो 6 बजे विधि करते, लेकिन एक उन्होंने उनका देखकर हमको शक्ति आ गई, क्योंकि किसी भी अंदर रिलेटिव में भी जो क्रमिक मार्ग में होता है, वो किसी भी साधना में एक पहले में पहली बाबत होती है, एक तो टाइम फिक्स होना, और दूसरी बाबत होती है प्लेस, जगह नक्की होना। वो लोग ऐसा करते हैं, एक फिक्स टाइम रखते हैं कि मैं ये बजे उठूंगा और ये जगह बैठकर मैं अपनी साधना करूंगा, बराबर है? तो हमारे में तो अभी अक्रम मार्ग दिया हुआ है, लेकिन हम वो भी अगर यूज करते हैं कि भाई एक जगह भी नक्की हो जावे और एक टाइम भी नक्की हो जावे ना, तो उससे बहुत ज्यादा अनेक गुनी शक्ति हमारे अंदर मिल सकती है, ऐसा है। मतलब जगह और टाइम दोनों भी अगर फिक्स करके कर सकते हैं तो अभी और भी अंदर शक्ति खुल सकती है, लेकिन अगर नहीं है तब तक तो ये जो है वो कंटिन्यूस चालू रखने का है। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी आगे खुशी बताओ। बातें करो। हाँ, जय सच्चिदानंद।
आज दोपहर में मैंने निश्चय किया था कि आज तो कुछ भी हो जाएगी, आरती तो करनी ही है, तो आज आरती की थी। अच्छा, हाँ, तो आज जो भी आप निश्चय करते हो वो चीज हमको मिलती है, बराबर है ना। ऐसे साबित हो गया ना कि हमने जो निश्चय करते हैं तो हमको मिलती है। तो हमको निश्चय क्या करने का है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो विधि है, बराबर, हमारी जो नबड़ाई है वो दूर करने की, और विधि अच्छी तरह से होए वो हमको पहला निश्चय करने का है। तो आप जैसे जैसे निश्चय करते जाओगे वैसे वैसे वो आसान रहेगा, अंदर वाले भी आपको सपोर्ट कर लेंगे, समझ गए ना। तो आपने नक्की कर देने का, मेरे को ये बजे इतना विधि करने का है, ये बजे आरती करने का है, तो आप जितना भी नक्की करोगे वो अंदर से मिलता ही जाएगा, समझ गए ना। ये अनुभव हुआ ना आपको, तो अनुभव नोट करने का है कि भाई ये होता है, बराबर है। हाँ। आगे कौन है? प्रिया ना, पर 1 मिनट खुशी, आपको क्या नहीं हुआ आज? तो बात नहीं किया आपने, निश्चय हाँ, किसमें नहीं किया था? सुपर ब्रेन योगा। सुपर ब्रेन होगा, वो क्यों नहीं हुआ? आज अंदर ऐसा खड़ा हुआ कि याद नहीं करना है। हाँ, मतलब वो उसका नक्की नहीं किया था, क्या है, स्ट्रांगली नक्की नहीं किया था, उसके ऊपर हमने वेटेज नहीं डाला था। क्या नहीं डाला था? वेटेज नहीं डालेगा। जो जो चीज पर हम वेटेज डालेंगे वो अपने आप होते जाएगा, समझ गए ना। आप दूसरे टीवी देखने में वेटेज डालोगे तो तुरंत आप फट सा के बैठ के टीवी चालू कर दोगे। मतलब जो जो चीज पे हम वेटेज डालेंगे वो चीज होते जाएंगे। तो हमारे हित में जो जो चीज है उसके ऊपर हमको वेटेज डालने का है कि भाई ये हमको बताया हुआ है, हमारे गुरु की आज्ञा है, दादा भगवान की आज्ञा है विधि में। तो उसके ऊपर आप जितना भी वेटेज डालोगे तो अपने आप अंदर से ऐसे भगवान बैठे हुए तो आपको वो करने में वो आपको मदद करेंगे, बराबर ना। और सुपर ब्रेन योगा में आपने वेटेज नहीं डाला, चलो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, तो अंदर वो पोल लग जाती है। तो हमको नक्की करने का है भाई, एक बार हमने नक्की कर दिया है, फिर चाहे कैसे भी संजोग आवे, क्या है, कैसे भी संजोग आवे, लेकिन हमको ये खत्म करने का है, बराबर। एक बार हमने नक्की कर दिया है तो हमको करने का है बस। तो अपने आप फिर अपना जो मन है वो साइड पे आपको रास्ता दिखाएगा, वरना जो नक्की में कचास रह जाएगी तो कुछ ना कुछ वो टाइम पे आ जाएगा कि चलो चल लेगा आज के दिन, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने एक बार नक्की कर दिया है कि भाई यहाँ करने का है, तो फिर अपने आप वो वेटेज डाल के नक्की करोगे तो हो जाएगा, ऐसा है। तो खुशी, आपने सुपर ब्रेन योगा का बेनिफिट्स नहीं मालूम है? मालूम है। तो क्या बेनिफिट होगा? सुपर ब्रेन योगा करेंगे तो हमारी पढ़ाई में कंसंट्रेशन रहेगा और हमारे हेल्थ को भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा। और ये निश्चय पक्का होगा सब तीनों गोल में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये अपने जो विधि करते हैं तो वो रोज रोज करने की क्या जरूरत है, क्यों ऐसे रोज रोज करने की है? पक्का पक्का हो इसलिए। पक्का तो हो ही गया है ना आपको। हाँ, मतलब वो अंदर घूंटाई, मतलब कहे ना के ઘૂંટાઈ જાય અંદર કે પ્રાપ્ત મન વચન ગાયથી કોઈને દુઃખ નથી જ આપવાનું એવી રીતે. હા, બરોબર, તે ઘૂંટાઈ જાય, રોજે રોજ શું થાય, એ અંદર ઘૂંટાતું જાય ને એક વખત એને શું કહેવાય, અભ્યાસ કહેવાય, શું કહેવાય એને? અભ્યાસ. અભ્યાસ કહેવાય. અને અભ્યાસ કરતા કરતા પછી અધ્યાસમાં થઈ જાય, પછી એ તમારે કરવાનું નહીં, એને સહેજા સહેજ અંદર થઈ જાય. જેમ તમે ગાડી શીખતા હોય તો શરૂઆતમાં તમારે બધું એ કરવું પડે, ધીરે ધીરે અત્યારે કેવો તમે સ્કૂટી ને ગાડી લઈને જઈ શકો છો ને બધે, હા, આપોઆપ થઈ જશે, પછી એમાં કઈ કરવાની જરૂર પડે નહીં. અને આ રોજે રોજ કરવાથી શું થાય, તો કે આ વિધિ ને બધું કરવાથી જેમ તમને એક દિવસ જમવાનું મળે અને એક દિવસ બે દિવસ જમવાનું ના મળે તો શું થાય? ના ગમે, ભૂખ એક લાગે. દિવસ સુખ આવે, પછી પાછો 2-3 દિવસ દુઃખ ના જાય, પાછો એક દિવસ સુખ આવે, એવું થાય. સુખની કન્ટિન્યુટી ના રહે. વિધિ કરો તો તમારે કન્ટિન્યુટી અંદર રોજે રોજ એનું પુણ્ય જમા થતું જાય અને તમને કન્ટિન્યુટી ની અંદર તમે દરેકે દરેક વસ્તુ પ્રાપ્તિ થઈ રાખે, સમજાય ને.
એ કન્ટિન્યુટી રહ્યા કરે, તમારે સુખની બી કન્ટિન્યુટી તમારે રહ્યા કરે, સમજાય ને? સુખ સમજણની બધી કન્ટિન્યુટી આ વિધિ કરીએ તે સુખ અને સમજણની બધી કન્ટિન્યુટી સતત રહ્યા કરે આપણની અંદર, સમજાય? અને કઈ પણ વસ્તુ આપણે કન્ટિન્યુઅસ મળે, તમે એસી હોય તો કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રહે તો આપણને સારું લાગે છે ને? હા, આનંદ કે રહે. ભાઈ ચાલુ થાય ને અડધો કલાક બંધ થઈ જાય તો પછી ના ગમે. તકલીફ લાગે છે ને? તો કે કન્ટિન્યુટી કરવા માટે શું કરવાનું? તો કન્ટિન્યુટી તમે જેટલું કન્ટિન્યુટી વિધિ કરશો એટલું કન્ટિન્યુટી વસ્તુઓ તમને પ્રાપ્ત થઈ રાખશે, સમજાય ને? કન્ટિન્યુટી તૂટી એટલે સમજણ કે એ વસ્તુનો અંતરાય આપણે ચાલુ થઈ ગયો, સમજાય ને? એટલે આ કન્ટિન્યુટી નું મહત્વ એની માટે છે. અભ્યાસ, નિરંતર અભ્યાસ તમે કર્યા તે વસ્તુ સુખની વસ્તુઓ તમને બધી સુખ અને સમજણ કન્ટિન્યુઅસ આપણને પ્રાપ્ત થઈ રાખે. તો એ વિધિનું મેઇન કારણ એ છે. પાછું બોલો, શું તમારે વિધિ દીધી શું કેવું છે? એટલે ક્વેશ્ચન છે મારો. ખબર એક પછી આપણે શ્રેયા દીદીને પેલા બોલીએ પછી વિધિ દીદી. હા, આજે મેં ભણતા પહેલા મેં નિશ્ચય કર્યું હતું કે મને મારું SS નું ચેપ્ટર પતાવવું જ છે, એટલે મારું પતી ગયું એ ચેપ્ટર. પણ પછી એના પછી મને ગુજરાતી કરવું હતું, પણ એ અડધું જ પત્યું, આખું ના પત્યું. તો કે તમે SS નું ચેપ્ટર નું નક્કી કર્યું તો નક્કી કર્યા પ્રમાણે આપણને ફળ મળી ગયું ને, સંજોગો બધા ભેગા થઈ ગયા અને આપણે ઇઝીલી પતી ગયું. અને ગુજરાતીનું કેમ અધૂરું રહ્યું એનું શોધખોળ કરી આપણે. અધૂરું રહી ગયું એનો વાંધો નથી, પણ આપણી અંદર નજરમાંથી એ જવું જોઈએ નહીં, સમજાય ને? એક વખત કદાચ આપણે અધૂરું રહી ગયું, ચલો અત્યારે અધૂરું રહી ગયું, પરંતુ કેમ અધૂરું રહી ગયું એના કારણો આપણે શોધી લેવાના. શું કરવાનું? કારણો શોધી લેવાના. હા, કારણો શોધી લેવાના, જેથી કરીને આપણે ફરીથી આપણે એ ભૂલ થાય નહીં, સમજાય ને? એક વખત આપણે ચાલતા 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 પડી ગયા તો આપણે ખબર પડી ગયા ભાઈ ખાડો આવે એટલે પડી ગયા. તો પછી આપણે બીજી વખત ત્યાંથી જઈએ તો આપણને ખ્યાલ હોય ભાઈ ખાડો આવે છે, તો આપણે શું કરીએ? ત્યાં વધારે ધ્યાન રાખીએ. શું કરીએ? ધ્યાન રાખીએ. વધારે ધ્યાન રાખીએ. તો એ પ્રમાણે આપણે જોઈ લેવાનું ભાઈ શેના આધારે આવું થયું. એ બે ત્રણ વસ્તુ જ હોય, ખ્યાલ આવે? એ બે ત્રણ વસ્તુ ખાલી આપણે હિન્દી में बोलो, हिंदी में. એ બે ત્રણ વસ્તુ રિપેરિંગ કરી નાખવાની. બરોબર છે શ્રેયા? हाँ. बोलने का कोई श्रेया दीदी? हाँ, दूसरा कुछ है? नहीं. ओके, तो अभी विधि दीदी का क्वेश्चन लेगा. हाँ, जय सच्चिदानंद। हमारी वाणी को कैसे कषाई, मतलब कषाई कैसे ना बनाए और वाणी को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं? તમને શું લાગે છે? हिंदी में बोलो. हिंदी में बोलना पड़ेगा? अच्छा. हाँ, क्योंकि ये मोनिका दी और MP से आए हैं. दक्ष नहीं आए पर उसकी मम्मी आई है. बरोबर है. तो विधि दीदी का प्रश्न है कि हमारी वाणी को कैसे कंट्रोल में रखे, बरोबर ने? और दूसरा क्या है? कषाई भी ना निकलनी चाहिए, किसी को दुख ऐसी, किसी को दुखदाई नहीं होवे. तो पहले में पहली उसका वाणी की कीमत हमको जानना. जैसे आप किसी बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हो तो 10 रुपए की चीज है और 100 रुपए आप देके आते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि वो 10 रुपए की चीज है, ज्यादा पैसे क्यों दें? हाँ, तो ठीक उसी तरह हमको वाणी जहाँ जितनी जरूरत है उतनी ही बोलने की, समझ गए ना? हाँ. क्योंकि उसका पैसा नहीं लगता है ना, इसके लिए हमको उसकी कीमत नहीं है. हाँ. क्या है? वाणी का पैसा नहीं लगता, इसके लिए हमारी उसको कीमत नहीं है. जैसे मोबाइल कंपनी वाले हर महीने फोन का बिल भेज देते हैं ना, तो भाई 799 में रिचार्ज करो और 3 महीने तक अनलिमिटेड बात करो. बराबर? 3 महीने बाद नहीं हो सकती बात, बराबर? ऐसे ही अभी कुदरत ने अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ चीज फिट कर दिया है कि 99 रुपये में आप आधा घंटा बात कर सकते हो, तो आप कितनी बातें करोगे? मैं तो बोलूं ही नहीं. बहुत कम. तो ऐसे करोगे भाई मेरा प्लान खत्म होने वाला है, मैं कुछ बोलेगी नहीं, समझ गए ना? तो उसकी कीमत करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? इसकी कीमत के भाई हमारे वाणी जितनी जरूरत हो उतनी हमको यूज करनी. अगर
कोई काम एक लाइन से जगह एक शब्द में खत्म होता है तो हमको नक्की रखने की भाई एक ही शब्द बोलने की जरूरत है। कहाँ जो आपको वो समय संजोग के अनुसार आपको नक्की करना पड़ेगा भाई हमको कितनी बोलने की जरूरत है, बराबर है। वो तो आप करोगे तो आप धीरे धीरे वो अभ्यास करते करते धीरे धीरे वो अपने आप संयमित हो जाएगी। और दूसरी तो दादा भगवान ने जो 9 कलम बताया हुआ है कि मेरी वाणी से वो 9 कलम की आराधना रखने की, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आप जागृत रखोगे। सुबह से शाम तक आपने जो बोला हुआ है वो आपको थोड़ा थोड़ा सुनते जाओगे तो भी आपके अंदर मालूम पड़ता जाएगा कि हमने कितना कितना जरूरत से ज्यादा बोला हुआ है। वो अगर आप धीरे धीरे देखते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा भाई इतनी जरूरत नहीं थी। तो अपने आप धीरे धीरे करके वाणी संयमित होती जाएगी। समझ गए ना? हाँ 9 कलम, 5वीं जो कलम है वो आपको दिन में 2-3 बार बोलने की, समझ गए ना? वो थोड़ा ज्यादा उसका अभ्यास करने का। तो जितना जितना अभ्यास करोगे वो अपने धीरे धीरे करके वो कम होती जाएगी। समझ गए ना? और वो भावना रखने की भी मेरी वाणी ऐसी हो जाए कि भगवान की जैसी वाणी है वो वाणी जैसी मेरी वाणी हो जावे। और वो पद तो है कविराज जी का, हाँ कंठे बिराजो है दादा। हे दादा। तो हर बार सुबह बोलने का 1-2 बार उसकी लाइन है कि हे दादा भगवान आप मेरे कंठ में विराजमान हो कि ताकि मेरी जो वाणी है वो किसी को दुखदायक नहीं होवे। समझ हाँ गए? हाँ वो समझ में आता है कि मैं जो बोल रही हूँ उससे मुझे भी दुख हो रहा है, सामने वालों को भी हो रहा है, पर पता नहीं वो निकल ही जाती है वो वाणी। निकल जाती है तो वो पीछे का जो भरा हुआ माल है वो आधार से निकल जाएगी। लेकिन निकल जाएगी तो जितनी बार किसी को दुख होता है हमारा काम क्या है कि जितनी बार दुख होता है उतनी बार हमको माफी मांगने की। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है? अगर हमारी वाणी से किसी को दुख होता है तो हमको उसका माफी मांगने का हमारा धर्म है। क्यों होता है? तो उसका कारण धीरे 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 आप माफी मांगते जाओगे ना तो अपने आप वो कम होता जाएगा। नया नहीं होता है अभी, लेकिन जो पुराना जो है वो फोर्स निकलता जाएगा। लेकिन वो फोर्स में अगर हम माफी मांगते जाएंगे तो धीरे 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 करके वो फोर्स कम होता जाएगा। समझ गए ना? तो हाँ धीरे धीरे माफी मांग नहीं लेके, लेकिन जितनी बार भी हमारे वाणी से अगर किसी को दुख होता है बराबर तो हमको उतनी बार माफी मांग ले लेंगे। और भगवान को बताना है कि भाई मेरी वाणी ऐसी हो जावे कि सबको मधुर लगे, आपकी जैसी वाणी हो जाए। हित मित और प्रीत कर, समझ रहे? अपनी वाणी कैसी होनी? हित मित और प्रीत कर, जो दादा भगवान ने बताया ना ऐसा है। हाँ शॉर्ट होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए। हम्म, ऐसा है। वो आप लक्ष्य में रखोगे तो धीरे धीरे करके होता जाएगा। हाँ समझ गए ना? हाँ समझ गई। बराबर है दीदी जी? हाँ हाँ बराबर। श्रेया दीदी आपको कुछ क्या क्वेश्चन? नहीं। ओके तो वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अच्छा बातें हसमुख काका के साथ किया। तो आई होप अभी देखा जो सुना तो कुछ अभी इम्प्लीमेंट करने का। ओके इम्प्लीमेंट में तो क्या लगता है? नोट्स लिखने का कि भाई मैं ये करने का है, मेरा ये करने का है। दीदी जी ने बोला ना खाना नहीं खाने का, पहले सुपर योगा करने का, बाद में ही खाएंगे। ओके ऐसे कुछ रूल्स बनाएगा तो बहुत बहुत फायदा होगा। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।